कि सदर डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। It's absolutely incredible. Regeneron works miracles. Yeah, he didn't know his name. He couldn't hear me tell him how much I love him. And now with Regeneron and this amazing surgery, he can listen to music and he loves it and he loves to dance and he loves instruments and I'm so proud of him and he's been so brave through all of this. And yeah, now he can hear and he has a bright future ahead of him and I'm so thankful to everybody on the Regeneron team. Oh, that's incredible. I mean, even the fake news has to be impressed with this. They'll find a way to make it a bad story. He doesn't hear perfectly, but he actually does. It's about 1% off. They'll figure a way. How are you going to do it? You got to explain. No, they're genius. They are genius. I respect them a lot. But I just want to thank you, Sierra. That's incredible. You and your family. Thank you for having us. He's a beautiful person, too. That's a beautiful boy. Thank you. Hi. Thank you. His life is a happier life? Oh, yeah, he is so full of energy and love now, and he was such a So you serious see baby. such a difference. Yeah, he was such a serious baby. And now he's before that, it full of was, fun. he didn't, it's very tough for... Oh, for sure. He can't tell me what he wants or what he wants to eat or what he needs, and now he'll be able to do that. And Wow. It's life-changing. That's a great job they've done. I want to thank Regeneron and other companies for doing their part to bring down the cost of health care for all Americans under our Most Favored Nations agreement. We've secured gigantic discounts with price differences from 4 to 5 and even 600%. 600%. One of the most popular weight loss drugs has gone from $1,350 a month to as low as $199 a month. So that's a price that's incredible. So it used to sell in London for $87, and they raised it to $199, which is a big raise if you know, from $87 to $199. But that's been going on. Our country's been being ripped off for 30 years. How long would you say, Doug? Like 30, 40 years. For years with drugs and drug prices. So they're going up. We're going way down. And because the world is a bigger place than we are, believe it or not, it's hard to believe that, but they are, that we go down much more than they go up. So they don't go up as much as people would have thought. So they're going from, they're going to 199 and we're going down all the way down. Think of that. We're going down from $1,350 a month to $199. That's, nobody would believe it. And this is true with all. I mean, this is the weight loss drug. But this is true with all drugs. Sometimes even more of a difference than that, sometimes a little bit less, but sometimes substantially more than even that difference, and you see what that is. So we cut the per cycle cost of IVF drugs by thousands of dollars, and we reduced the price of the major COPD medication from $458 to $50. What? That must be a typo. Is that a typo? From $458 to $50. If your boy was here, he'd go, wow. He left. He got bored. I think he got a little bored. He wants to go into bigger and better things, but there's nothing bigger or better than this. They'll all be available right now at TrumpRx.gov. So it's, you know, that's why it's doing well. It's not doing well for other reasons. It's doing well. Think of that. That's some discount. But we have others. And these are all top companies and top medications. And I think in the end, we're going to have every company involved. We're almost there right now, but we're going to have every company involved. So TrumpRx has already received more than 15 million visitors, and every American should log on to check for massive discounts before they go to the pharmacy. It's setting a record. Nobody's ever seen anything like this. I've actually had many companies, I shouldn't tell you this, Bobby, but there have been many companies say, so we'd like to buy from you if you could. What? TrumpRx.com. I said, it's not for sale. It's not me. It's the government. The government owns it. I don't own it. But they're all impressed. These pharmaceutical companies, they said they've never seen anything like this. So it's fantastic. Now, I'd like to ask Secretary Kennedy to say a few words, and then we'll have Dr. Oz, the team at Regeneron, and Sierra. And Sierra, I'm so happy for you. And Chris Klump has been unbelievable, a real star. You don't know his name as much as some of the others, but he's a real star of the group. So, Bobby, please. Thank you. Thank you, Mr. President.
I was reminded when the president was speaking of a conversation that I had yesterday with one of the Democratic senators who was questioning me during a hearing, and she was ridiculing President Trump for his math, and she was saying it's mathematically impossible to have a drug drop by 600% cost, which he had claimed. And I said, well, if the drug was $100 and it raised the price to $600, that would be a 600% rise. Well, if it drops from 600 to 100, that's a 600% savings. And the president used that mathematical device to illustrate the magnitude of the theft that has been happening against our country and our people. As he said, we have 4.2% of the world's population. We take 13% of the pharmaceutical drugs. We spend 80% of the biotechnology research in our country, and we provide 75% of the profits to the pharmaceutical industry. This is a ripoff that has irked him for 20 years. During his first term, he held the line on drug prices for the first time in history. He came back on this term and he said, we're going to lower them this time, no matter what. There's people in this room who are part of the White House staff who said we can't do that. Oz and I said we probably can't do that, but he harassed us. We were beleaguered. It was like Fort Apache. Dr. Oz would not answer his phone because he was calling all night long with the president on the line saying, get this done. And we brought in this amazing superstar, Chris Klomp, and he negotiated these agreements that people said were impossible. I want to thank him for his leadership, Chris, and I want to thank George and Lynn, who are the co-founders of this company of Regeneron. Their generosity, their idealism, their love of this country, and their compassion for these children who are injured. Thank you. Thank you. Amazing. It is amazing. And you're right. I took a lot of heat. I'd say 500, 600, 700. But we also say sometimes 50%, 60%, different kind of calculation. 70, 80, and 90%. And people understand that better. But there are two ways of calculating it. But either way, it doesn't make any difference. Whether it's 60, 70, or 80%, nobody's ever heard of it. But it's also 500, 600, 700, depending on the way you want to look at it. So the way you word the calculation. It's either one. But Bobby, you're doing a fantastic job. We wanted somebody out of the box, and we got him, right? Right. I would say we got him. And Bobby, he's a great guy, actually. So, Oz, how about saying a few words, please? So this has been an unprecedented process. The president insisted we deal with one critical number you should all remember, which is that 1 in 3 Americans, when they go to... सऊदी ट्रंप का अमरीकी बहरिया को बारूदी सुरंगें बिछाने वाली तमाम ईरानी कश्तियों पर हमले का हुक्म। ट्रुथ सोशल पर बयान में लिखा कि अमरीका ईरान की छोटी कश्तियां आबना हुर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछा रही हैं। हम ईरानी बहरिया के 159 जहाज़ पहले ही समंदर में डबो चुके। अमरीकी बहरिया मेरे हुक्म पर कोई हिचकिचाहट न दिखाए। हमारे जंगी जहाज़ आबना हुर्मुज को बारूदी सुरंगों से साफ कर रहे हैं। अमरीकी बहरिया कार्रवाइयों में 3 गुना तेजी लाए। एक और बयान में सदर ट्रंप ने लिखा, ईरान मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इन्हें मालूम ही नहीं कि लीडर कौन है। ईरानी इंतहा पसंद जंग के मैदान में बुरी तरह शिकस्त खा चुके। ईरान के इंतहा पसंद आपस में झगड़ रहे हैं। ईरान में एतदाल पसंद किसी तौर एतदाल पसंद नहीं। ईरान में एतदाल पसंदों की इज्जत बढ़ रही है और ये पागलपन है। आबना हुर्मुज पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी बहरिया की इजाज़त के बगैर आबना हुर्मुज में कोई जहाज़ आ सकता है न जा सकता है। आबना हुर्मुज मुकम्मल बंद है जब तक ईरान मुआहदा करने के काबिल न हो जाए। ईरान में कोई बुनियाद परस्त या एतदाल पसंद नहीं है। हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं। ईरानी सदर मसूद पेजेशकियान का ट्रंप को जवाब, कहा कौम और हुकूमत के आहनी इत्तेहाद से जारे मुजरिम को उसके किए पर पशेमान बनाएंगे। ये हमारे प्यारे ईरान की फतह का रास्ता है जो जान से ज़्यादा कीमती है। स्पीकर बाकर खालिबाफ ने एक्स पर लिखा कि हमारा एक खुदा, एक रहबर, एक मिल्लत और एक रास्ता है। ईरान की कामयाबी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। हुकूमत और अवाम के फौलादी इत्तेहाद और रहबर इनकलाब के इत्तेहाद से दुश्मनों को पशेमान कर देंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने कहा कि ईरानी इदारे इत्तेहाद, मकसद, नज़्म व ज़ब्त के साथ काम कर रहे हैं। मैदान जंग और सिफारतकारी एक ही जंग में मुकम्मल तौर पर मरबूत महाज है। ईरानी पहले से कहीं ज़्यादा मुत्तहिद है।
एलॉन मस्क की स्पेस एक्स ने पाकिस्तानी नौजवान की कायम करदा AI स्टार्टअप को खरीदने के लिए $60 अरब की पेशकश कर दी है। स्पेस एक्स ने कोड जनरेशन स्टार्टअप कर्सर को खरीदने का ऑप्शन हासिल कर लिया। फर्जंद पाकिस्तान सालेह आसिफ की बनाई टेक कंपनी कर्सर ने सिलिकॉन वैली में हलचल मचा दी है। फर्जंद पाकिस्तान कराची का होनहार जवान जिसने रकम की कामयाबी की दास्तान, सब्ज हिलाली परचम को दिलाई मुनफरिद पहचान। आसिफ की बनाई टेक कंपनी कर्सर ने सिलिकॉन वैली में हलचल मचा दी और अब इलॉन मस्क की स्पेस एक्स पाकिस्तानी AI स्टार्टअप कंपनी कर्सर को $60 अरब में खरीदने जा रही है। स्पेस एक्स की जानिब से पेशकश के बाद स्पेस एक्स और कर्सर के दरमियान $60 अरब के माहदे का इम्कान है। माहदे की सूरत में स्पेस एक्स कर्सर को रवां साल हासिल कर लेगा। इलॉन मस्क की स्पेस एक्स ने डील से मुताल्लिक बाज़ाब्ता तस्दीक भी कर दी। एलामिये में कहा कर्सर के साथ सुपर कंप्यूटर के जरिए मुफीद तरीन मॉडल्स तैयार करेंगे। स्पेस एक्स ने कर्सर के लिए शराकत दारी का ऑप्शन भी जाहिर कर दिया। शराकत दारी हुई तो स्पेस एक्स कर्सर में $10 अरब सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तानी स्टार्टअप कर्सर का मवाजना ओपन AI और एंथ्रोपिक से किया जा रहा है। कर्सर को AI मॉडल्स तैयार करने के लिए बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग पावर हासिल हो जाएगी। कराची के सालेह आसिफ ने MIT के दोस्तों के साथ मिलकर कर्सर की बुनियाद रखी थी, जिसकी सालाना आमदन अब $1 अरब से तजावुज कर चुकी और मालियत $29 अरब से भी ज्यादा हो गई। पासदारा ने इनकलाब की तेज रफ्तार कश्तियां और जेर आब जदीद ड्रोन अमरीकी जहाज़ों को तबाह करने के लिए तैयार है। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी ने कहा है कि समंदरी गारों में छुपा हमारा बेड़ा इंतजार में है कि कोई अमरीकी जहाज हद पार करे और उसे इबरत का निशान बना दे। अमरीका को अब हुर्मुज के करीब आने की हिम्मत नहीं। वो अपनी बहरी जहाज़ों का अंजाम देख चुके हैं। कब्जे में लिए गए जहाज़ों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अमरीकी बहरिया ने ईरान से मुंसलिक एक और जहाज़ पर कब्जा कर लिया। अमरीकी वजारत जंग ने तस्दीक कर दी है। बयान में बताया है कि चीन जाने वाले जहाज़ मैजेस्टिक एक्स को बहरे हिंद से तहवील में लिया गया। अमरीका का दावा है कि यह जहाज़ ईरान से मुंसलिक था, लेकिन इस पर किसी मुल्क का झंडा नहीं था। अमरीकी फ़ौज की जहाज़ पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी गई। वीडियो में अमरीकी मैरीन्स को हेलीकॉप्टर से जहाज़ के अरशे पर उतरते हुए देखा जा सकता है। ईरान ने आबना हुर्मुज टोल से पहली आमदनी मरकजी बैंक में जमा करा दी है। ईरानी पार्लियामेंट के नायब स्पीकर हमीद रजा ने बताया है कि आबना हुर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों से वसूल की गई फीस कौमी खजाने में जमा कर दी गई है। अल जजीरा TV चैनल का कहना है कि टोल सिस्टम ईरान और अमरीका के दरमियान जारी जंग के दौरान नाफिज किया गया था। ताहल वसूली की मजमूई रकम की तफसीलात जाहिर नहीं की गई। झूठी खबरें फैलाने वाला मीडिया मेरी बेचैनी से मुतालिक गलत बयानी कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN पर कड़ी तनकीद। ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में कहा कि ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए मुझ पर कोई दबाव नहीं। मेरे पास बहुत वक्त है, लेकिन ईरान के पास वक्त खत्म हो रहा है। झूठा प्रोपेगेंडा करने की वजह से मीडिया अपनी साख खो चुका। ईरानी बहरिया समंदर की तह में पहुंच चुकी है। फजाइया मुकम्मल तबाह हो गई। ईरान का दिफाई निज़ाम और रेडार सिस्टम तबाह हो चुका। क़यादत भी नहीं रही। ईरान की नाकाबंदी इंतहाई सख्त है। हालात मजीद ख़राब होंगे। वक्त ईरान के हक़ में नहीं। ईरान से डील तब होगी जब अमरीका और उसके इत्तेहादियों के लिए बेहतर होगी। डील का फैसला सिर्फ अमरीकी मफादात और आलमी अमन को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर जल्द दोबारा बिठाने में कामयाब हो जाएंगे। मुशावरती इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इजलास को आलमी रहनुमाओं से अपने राबितों के बारे में भी आगाह किया। इससे पहले इस्लामाबाद में चीनी सफ़ीर ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। इस मौके पर अमरीका ईरान जंग और पाकिस्तानी सालिसी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीका में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर और तज्ज़ियाकार हुसैन हक्कानी ने कहा है कि शायद अमरीका आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी मुस्तकिल ना कर सके। देखना होगा कि ट्रंप मुश्किलात देखते हुए फतह का ऐलान कब करते हैं। ईरान को भी देखना होगा कि कितनी तबाही बर्दाश्त कर सकता है। ट्रंप की मजबूरी ये है कि जाहिर करना चाहते हैं कि वो जीते हैं। ईरान ने अब तक मौका नहीं दिया कि वो कामयाब हो गए।
इम्कान है कि फरीक़ैन के दरमियान अबूरी समझौता हो जाए। होगा कि ईरान की क़ुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा है या अमेरिका की ये सलाहियत कि वो ब्लॉकेड बरकरार रख सके। दोनों के लिए मुश्किलात हैं। ब्लॉकेड बरकरार रखना आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा अस्करी असासों की ज़रूरत होती है और अमेरिका के जो अस्करी असासे इस वक्त खलीज अरब, खलीज फ़ारिस के करीब हैं, वो शायद ये काम मुस्तकिल तौर पर तवील अरसे तक ना कर सकें। सदर ट्रंप को भी ये देखना होगा कि वो किस मरहले पर फतह का ऐलान करके अपने लोगों को ये कह के कि मैंने अपने अहदाफ हासिल कर लिए, इस जंग से पीछे हटते हैं। ईरान जंग के हामी रजा पहलवी पर हमला। बर्लिन में कुछ अफराद ने रजा पहलवी पर कैचअप फेंक कर नफरत का इजहार किया। सिक्योरिटी एहलकार घेरा डालकर रजा पहलवी को अपने साथ ले गए। रजा पहलवी ईरान पर अमेरिका इसराइल हमलों के हामी है। कहा जाता है कि अगर अमेरिका ईरान में रजीम चेंज कराने में कामयाब हो जाता तो ईरानी हुकूमत रजा पहलवी के सुपुर्द करने का मंसूबा बनाया गया था। इसराइल और लबनान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात में सदर ट्रंप की शिरकत मुतवक्की है। CNN का दावा बताया, ट्रंप व्हाइट हाउस में इसराइल और लबनान मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे। सदर ट्रंप दोनों मुल्कों के सफ़ीरों का व्हाइट हाउस में इस्तकबाल भी करेंगे। मुज़ाकरात का पहला दौर गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी महकमा ख़ारजा में हुआ था। खालिस्तान के हामी कारकुनों को धमकियां देने की भारतीय सिफारतकार की ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है। तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने मिलान में तैनात भारतीय सिफारतकार की मुबैना रिकॉर्डिंग जारी कर दी है। जारी करदा ऑडियो में भारतीय सिफारतकार को 1 या 2 अफराद की जान ले जाने से मुतालिक धमकी देते सुना जा सकता है। सिख फॉर जस्टिस का कहना है कि ऑडियो बैरून मुल्क सिख रहनुमाओं को निशाना बनाने की मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा मालूम होती है। पहले भी कनाडा और बरतानिया में सिख रहनुमाओं की पुरस्कार मौत हो चुकी। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि रिकॉर्ड गुफ्तगू खालिस्तान तहरीक के हामियों के खिलाफ आलमी सतह पर मुनज़्ज़म मुहिम की निशानदही करती है। मुबैना ऑडियो और धमकियों के बाद कनाडा और भारत में पहले से मौजूद सिफारती कशीदगी में इजाफा हो सकता है। कराची से आपको खबर देंगे, जहां डिजिटल करेंसी की लूटमार का एक और वाकया। एयरपोर्ट के करीब वारदात हुई। ऑनलाइन टैक्सी के जरिए नौजवान गुलिस्तान जौहर से एयरपोर्ट जाने के लिए निकला था। इसी पर मजीद जानेंगे। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा क्या वाकया पेश आया? देखें, शहरी अपने घर जा रहा था, एयरपोर्ट से गुलिस्तान जौहर एक वाइट कलर की गाड़ी आई, बड़ी गाड़ी वीगो डाला आया जिसमें 4 मुसल्लह अफराद सवार थे। शहरी को अपनी गाड़ी में जबरदस्ती बिठाया और मुख्तलिफ इलाकों में घुमाते रहे। 6,800 अमरीकी डॉलर की डिजिटल करेंसी अपने अकाउंट में ट्रांसफर की गई। साथ ही नौजवान का मोबाइल फोन और दीगर सामान भी छीन लिया गया। मुतासरा शहरी ने एयरपोर्ट थाने में वाक़े का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस कहती है CCTV फुटेजेस की मदद से मुल्ज़मान की शनाख्त और गिरफ्तारी की कोशिश कर रहे हैं। शहरी को जब ये घुमाते रहे तो उनको कोरंगी के इलाके में तशद्दुद करके छोड़ के वहाँ से मुल्ज़मान फरार हो गए। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। बानी PTI ने पार्टी के 3 वकील रहनुमाओं पर बरहमी का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक सेनेटर हामिद खान, सलमान अकरम राजा और इंतज़ार पंजोता से बानी PTI नाराज़ हैं। बानी ने कहा है कि तीनों ने मेरे नाम पर जिनको बार इलेक्शन में टिकट्स दी वो कहाँ हैं। बानी PTI को कहा गया था कि टिकट होल्डर वकला जीत कर आपकी रिहाई की तहरीक चलाएंगे। मिशाल यूसुफजई ने वकला कन्वेंशन कराने की तजवीज़ बानी से मुलाकात से मशरूत कर दी। बानी की बहन अलीमा खानम भी पार्टी के वकला रहनुमाओं पर कई बार तनकीद कर चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मारूफ बरतानवी निजात पाकिस्तानी डॉक्टर हसनात खान की मुलाकात हुई। वज़ीर आला ने डॉक्टर हसनात को सबरा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद दी। इंग्लैंड से पाकिस्तान आकर हमवतनों की खिदमत के जज्बे को खराज तहसीन पेश किया। मरियम नवाज ने जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को बेहतरीन इदारा बनाने का आज़म दोहराया। कहा, खुशी है पाक धरती के सपूत ने हमवतनों की खिदमत का रास्ता चुना। पाकिस्तान के हर फर्द को दिल के इलाज की बेहतरीन सहूलत फराहम करने के लिए कोशा हैं। पंजाब को दुनिया भर में मेडिकल टूरिज्म का हब बनाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी खलाबाजों खुर्रम दाऊद और मोहम्मद ज़ीशान अली की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, आप दोनों से मिलकर दिली मुसरत हुई है। आपका काबिल सताइश मिशन पाकिस्तान के लिए अहम संग मील है। खलाई तहकीक के लिए जाना पूरी कौम के लिए फ़ख्र की बात है।
पूरा एतमाद हूँ कि आप पाकिस्तान की तारीख में नया बाब लिखने जा रहे हैं। चीनी ताउन से ये सफ़र दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात में नई जिहतें पैदा करेगा। पाक चीन दोस्ती अब आसमान की बुलंदियों को छूते हुए सितारों पर कमंद डालने के लिए तैयार है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ और मुस्तकबिल के जंग के मौजू पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस कराची में हुई। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने दिफाई सनत, एकेडमिया और अफवाज के इश्तराक को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। पाकिस्तान में दिफाई खुद इन्हिसारी और इंडिजनाइजेशन के फ़रोग़ पर जोर दिया। बरामदी सलाहियत बढ़ाने का आज़म, कहा इंडियन ओशन मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमली का मरकज़, आलमी तिजारत और तवानाई सलामती से जुड़ा खित्ता है। ISPR ने बताया, कॉन्फ्रेंस में कहा गया, तेज़ी से बदलती टेक्नोलॉजी जंगी तसव्वुरात, फोर्स स्ट्रक्चर और नताइज को नई शक्ल दे रही है। सिविल और अस्करी टेक्नोलॉजीज़ की हद मदहम, पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम के लिए मौक़े और चैलेंजेस उजागर किए गए। सीनियर अस्करी क़यादत, सिफारतकार, पॉलिसी साज और माहिरीन की शिरकत। मुस्तकबिल की जंग के लिए फ़िक्री हम आहंगी पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मार्का हक में कामयाबी का 1 साल। विमेन यूनिवर्सिटी बाग में सेमिनार। मुक़र्रीन का भारत को धूल चटाने पर अफ़वाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त ख़िराद तहसीन। कहा, मार्का हक की कामयाबी से पाकिस्तान की अस्करी और सियासी बरतरी कायम हुई। जामे में मार्का हक रैली भी निकाली गई। तालिब इल्मों का कहना था, पाकिस्तान की तरफ उठने वाली मैलियाँ को नेस्त व नाबूद कर देंगे। मार्का हक में पाकिस्तानी अफवाज ने अपनी जान पर खेलकर पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आज का दिन ये मनाने का बुनियादी मकसद उन बहादुर अफवाज को खराज तहसीन पेश करना है जिन्होंने एक बड़ी ताकत का उसका गुरूर चकनाचूर किया। खराज तहसीन पेश करते हैं अपने हीरोज को, अपनी फोर्सेस को। पाकिस्तान की तरफ उठने वाली मैली आंख को हम नीस्तो नाबूद कर देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। ये बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, हमारी अफवाज के लिए और चीफ वार्डन स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर के लिए, और मैं स्पेशली उनको खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। Today we are celebrating here first year anniversary of Marka Haq. Here we are all together to celebrate the successful operation Marka Haq Bunyan al-Marsoos. खुशदिल शाह ने कराची वालों को खुश कर दिया। साबिक क्रिकेटर्स का हर लम्हा पुरजोश। PSL स्पेशल में इज़हार ख्याल। बासित अली ने कहा, खुशदिल ने उम्मीद दिला दी, कराची प्लेऑफ में जा सकता है। कामरान अकमल बोले, ये मैच जीतना ज़रूरी था। खुशदिल ने टॉप क्लास इनिंग्स खेली। अदाकारा शगुफ्ता एजाज बनी मेहमान। खेला दिलचस्प खेल। मुस्तफ़ा चौधरी ने रूपधारा क़ैम अली शाह का, आदि ने चुटकुलों से हाज़रीन को महसूस किया। पाकिस्तान की एक नामवर अदाकारा, सो एक्साइटेड कि आज हमारे शो का हिस्सा बने। शगुफ्ता साहबा के लिए बहुत सारी तालियां। शगुफ्ता एजाज साहब। खुशदिल ने आज पूरे पाकिस्तान को, स्पेशली कराची वालों को खुश किया है। कराची को होप दे दी है। बेहतरीन चांस है क्योंकि कराची का मैच अब कोयटा से, अपना एवरेज भी अच्छा कर लें और मैच भी जीते। खुशदिल ने तो टॉप क्लास नॉक खेला। और कराची का मैच कितना बड़ा PSL का होता है। टूर्नामेंट में रहने के लिए, टॉप 4 में रहने के लिए मैच जीतना बड़ा जरूरी था। वार्नर एंड तक गया अपने साथ, उसने खिलाया। हैदराबाद कहानी सबकी मुका सकता है, लेकिन कल उनका मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड जी टूर्नामेंट इसमें वही जीतेगा जिसने अपने हल्के में काम किया होगा। जो लोग मुझे गुस्से वाला समझते हैं वो डैश है, बेवकूफ है। सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पे आता है? कराची को देख के बहुत गुस्सा आता है। कराची शहर के लिए अगर एक जुमला कहना हो तो कहूंगी गंदा। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। क्या बात है। सामान 100 बरस का, पल की खबर। क्या बात। क्या मेरा दिल मोहब्बत से भर लोगे? नहीं बनाएंगे यूनिवर्सिटी रोड, क्या कर लोगे? मुझसे प्यार करती हो ना, मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, बता दो ना। मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर जहाँ से इकबाल, अगर यकीन हो जाए कि अल्लाह देख रहा है। इस्लामाबाद और हैदराबाद का, हैदराबाद हैदराबाद इंसान का एक धंधा है। जिस कमेंटेटर ने कराची को कहा वो खुद गंदा है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।